completed CPU scheduling algorithms. So today I'll start with synchronization. What is synchronization between processes? Okay. So the process you already know. No? What is process? What is process? Tell me. Anybody tell me what is Running program. running program? A program and the execution is known as process. Now the processes are categorized into two categories. Processes can be categorized into two categories, that is one is cooperative processes. Just a second. And the second one is independent process. Now, what are cooperative processes? When the execution of one process affects the execution of other process, it is known as cooperative processes. ठीक है, इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस क्या होती है? एक किसी एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन दूसरी प्रोसेस को अफेक्ट नहीं करेगा, देन दोज प्रोसेसेस आर नोन एज इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस. कोऑपरेटिव प्रोसेसेस क्या होती है? जो एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन दूसरी प्रोसेस को अफेक्ट कर सकता है, दैट आर कोऑपरेटिव प्रोसेसेस. एंड इंडिपेंडेंट, फॉर एग्जांपल, जैसे यू आर यूजिंग यूजिंग एटीएम कार्ड, ठीक है, तो वन एट अ टाइम, only one person at a time can use the ATM machine. Other has to wait until that person finishes its process. So that is independent process. So independent process में क्या होता है? It will not affect the other processes. Cooperative process का example हम देख सकते हैं. Suppose, okay, you are making transactions. एग्जाम्पल लेते हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ठीक है. सपोज यू हैव अमाउंट इक्वल टू 1000, ठीक है, और इसी को आपने डिडक्ट कर लिया, कितना पैसा निकाल दिया, आपने विड्रॉ किया, 500 विड्रॉ किया, ठीक है. सपोज उसी टाइम पे एक और ट्रांजेक्शन हो रहा है, अभी अमाउंट इसमें भी 1000 का सेम अकाउंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, एंड डिपॉजिट किया है 500. ये जो दो प्रोसेस है, इन दोनों का सिंक्रोनाइज होना इट्स वेरी कंपल्सरी, बिकॉज दीज आर कोऑपरेटिव प्रोसेसेस. हम सेम डेटा सेट पे हम वर्क कर रहे हैं. तो कोऑपरेटिव प्रोसेस में क्या होता है? सिंक्रोनाइजेशन इज रिक्वायर्ड सो दैट इट विल नॉट अफेक्ट द आउटपुट. बट इन इंडिपेंडेंट प्रोसेस क्या होती है? अपने आप में इंडिपेंडेंट है, तो इट विल नॉट अफेक्ट अदर प्रोसेस. तो इंडिपेंडेंट प्रोसेस को हम विल नॉट स्टडी दीज प्रोसेसेस बिकॉज इट विल नॉट अफेक्ट योर सिस्टम. Will study cooperative processes. So synchronization is basically required in cooperative processes which are dependent on one another. So the execution of one process affects the other process. Then these processes are known to be cooperative processes.
are said to be Have you understand what do you mean by cooperative and independent processes? So in cooperative processes, can share data and code. So cooperative processes, and we are talking about parallelism. Parallelism की बात कर रहे हैं because multiple processes are executing at the same time and they are sharing the same data or the code. The same memory address को ये share कर रहे हैं. These processes are we are talking about parallelism. ठीक है? So cooperative processes can execute concurrently or in parallel. So this means that one process may only partially completed its execution before the another process is scheduled. One process may only partially complete execution before another process is scheduled. Now we'll see an example through which we can understand what are cooperative processes and how they create problems if they are not properly synchronized. The problem arises if cooperative processes are not properly synchronized.
ठीक है, we'll see an example for consumer producer consumer problem. Just a second, मेरा मोबाइल Okay. So we'll see what is this problem. Now, what is this producer consumer problem? में basically होता है there are two processes. We are talking about cooperative processes. Cooperative processes क्या होती हैं? They are sharing something. There must be something in common. Then only it will be called cooperative processes. Maybe they are sharing some memory. Maybe they are sharing some common data or some variable they are sharing. So cooperative processes किसी common चीज को share कर रही होती हैं. ठीक है. Now what is the problem? Producer consumer problem. इसमें हम दो चीजें कंसिडर कर रहे हैं. एक प्रोड्यूसर है जो प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ डेटा आइटम्स को प्रोड्यूस कर रहा है, और कंज्यूमर क्या है? कंज्यूमर उन्हीं डेटा आइटम्स को कंज्यूम कर रहा है. प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा और कंज्यूमर उनको कंज्यूम करता जाएगा. हम देखते हैं किस तरह से ये प्रॉब्लम वर्क करती है. तो दिस इज अ बफर. ये एक मेमोरी हमने ली हुई है. बफर क्या है? एक मेमोरी है. इसमें हम कुछ डेटा आइटम्स स्टोर कर रहे हैं. सपोज वी हैव टेकन 8 n इक्वल टू 8. ठीक है. हमने एक बफर लिया हुआ. ये कॉमन मेमोरी है जो दोनों के दोनों प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दो प्रोसेस हम कंसिडर कर लेते हैं. प्रोड्यूसर इज अ प्रोसेस एंड कंज्यूमर इज आल्सो अ प्रोसेस. तो दीज आर शेयरिंग दिस कॉमन मेमोरी. तो ये एक बफर है आपका. दिस इज अ बफर. Let me draw the diagram, then we'll start. नहीं कहीं मेरी क्लास है ना, क्लास के बाद जाना है, लेकिन वो बंद हो जाएगी ना फिर. जब तक नंबर है होगा.
1 2 3 4. Suppose we have a buffer of 8 elements. Buffer एक memory है. It is starting from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and there can be 7 elements. So here we are writing a code for producer. Producer किस तरह से items को produce कर रहा है. Items produce करके वो memory में store करता जा रहा है, ठीक है? And consumer फिर उन items को consume करेगा. So this is producer. Producer क्या code run करेगा वो मैं यहाँ लिख रही हूँ. And consumer
So this is a producer code, है ना? मैं अभी explain करती हूँ. Now here I am writing the consumer code. Hello. हाँ श्रेया.
मैम आपका माइक ऑफ है। हाँ बेटा मैं अभी बोल नहीं रही हूँ, लेट मी कंप्लीट, है ना। ओके ओके। ओके ठीक है, तो दिस इज अ कॉमन memory which they both are sharing, these two processes are sharing. ठीक है, प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, अब हम एग्जाम इसके थ्रू देखते हैं कि कैसे ये वर्क कर रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि काउंट एक वेरिएबल है जो दोनों, काउंट इज अ वेरिएबल विच इज शेयर्ड बाय बोथ द प्रोसेसेस, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। ठीक है, ये देखिए काउंट इक्वल टू 0, यहाँ भी ये काउंट को यूज कर रहा है। हम एक केस कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसमें ये कंसिडर कर रहे हैं कि केस वन हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि सिर्फ जो प्रोड्यूसर है वो एक ही आइटम को प्रोड्यूस कर रहा है और उस आइटम को ये स्टोर कर रहा है, एक ही आइटम प्रोड्यूस कर रहा है और कंज्यूमर उसको एक्सेस कर रहा है। ठीक है, हम मान लेते हैं केस वन ले लेते हैं। ठीक है, x1 एक आइटम है विच इज प्रोड्यूस्ड बाय कंज्यूमर, प्रोड्यूसर। ठीक है, अब इनके खुद के कुछ वेरिएबल्स हैं, जैसे आप ये देख सकते हो यहाँ पर काउंट काउंट इसका एक वेरिएबल है ना, हमने लिया हुआ है, ये ग्लोबल वेरिएबल है काउंट। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, ये फंक्शन है void प्रोड्यूसर void, हमने एक आइटम लिया आइटम p। ठीक है, इट इज अ वेरिएबल। अब हम कंडीशन चेक कर रहे हैं while true। while true मतलब जब तक कि इस बफर में एम्प्टी है बफर, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक इसमें आइटम्स ये प्रोड्यूस करता जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, तो प्रोड्यूस आइटम, ये एक आइटम प्रोड्यूस कर रहा है आइटम p, सपोज हम इसको बोलते हैं x1, ये प्रोड्यूस कर रहा है x1। ठीक है, x1 इसने प्रोड्यूस किया, यहाँ पर स्टोर किया। नाउ वाइल काउंट इक्वल टू n, मतलब कि जब तक काउंट की वैल्यू n नहीं हो जाती, n की वैल्यू क्या है 8 है, 8 तक ये बफर चल रही है 0 से लेके 7 तक, है ना, तब तक इसकी वैल्यू ट्रू नहीं हो जाती, तब तक क्या करोगे आप एंट्रीज कर सकते हो, आप प्रोड्यूस कर सकते हो आइटम, मतलब उस बफर में आप, एक मिनट, ठीक है, बफर इन आइटम p, मतलब उस आइटम को आपने स्टोर कर दिया। सपोज आपने अभी पहला आइटम प्रोड्यूस किया x1, तो ये पहला पहला जो है आइटम वो प्रोड्यूस हो गया और x1 आपने इसको स्टोर किया, तो आपने कंडीशन क्या दी है काउंट इक्वल टू n, जब तक कि n के इक्वल नहीं होगा काउंट तब तक इसमें एंट्रीज प्रोड्यूसर कर सकता है। ठीक है, नाउ यहाँ पर जब फर्स्ट एलिमेंट आ चुका है तो नाउ उसकी इंडेक्स वैल्यू चेंज होगी, है ना, तो इसको हमने कैसे चेंज किया, इन इक्वल टू इन प्लस वन मॉड वन। इन प्लस वन क्या है, इन की वैल्यू अभी इनिशियली क्या है 0, 0 प्लस 1 1, देन मॉड n, n क्या है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर 8, तो इसको हम करेंगे 1 मॉड 8 इक्वल टू क्या आएगा 1, तो ये इंडेक्स की वैल्यू चेंज होके क्या हो जाएगी, नाउ इनकी वैल्यू हो जाएगी 1, मतलब हम यहाँ पर आ जाएंगे।
सिमिलरली इस तरह से चलता रहेगा, फिर इनकी वैल्यू 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, इस तरह से ये 7 तक काउंट आपका काउंट प्लस 1 होता रहेगा। ठीक है, तो प्रोड्यूसर ने एक प्रोड्यूस आइटम एलिमेंट क्या करेगा? प्रोड्यूस, क्या बोल रहे हो बेटा, क्या बोल रहे हो बेटा? प्रोड्यूस आइटम क्या कर रहा है? देखो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दो प्रोसेसेस हैं, हम ये एक प्रॉब्लम कंसिडर कर रहे हैं और दो बोथ द प्रोसेसेस आर कोऑपरेटिव प्रोसेसेस। हम ये बोल रहे हैं कि प्रोड्यूसर एक किसी प्रोसेस किसी एलिमेंट को प्रोड्यूस कर रहा है और कंज्यूमर उसको कंज्यूम करेगा। तो हमने एक कॉमन कोऑपरेटिव प्रोसेसेस में क्या होता है, कुछ डेटा या मेमोरी या कुछ वेरिएबल्स कॉमनली शेयर होते हैं, है ना, तभी उसको कोऑपरेटिव बोला जाता है। तो ये दोनों के दोनों प्रोसेस इस मेमोरी को शेयर कर रहे हैं और ये कुछ वेरिएबल भी शेयर कर रहे हैं, जैसे काउंट वेरिएबल है। तो इन हमने इसमें ये नॉर्मल एक सी कोड लिखा हुआ है, हम सी प्रोग्रामिंग में कोड लिखा हुआ है, प्रोड्यूसर ये सी प्रोग्राम का कोड रन कर रहा है और कंज्यूमर ये सी प्रोग्राम का एक अपना पर्टिकुलर कोड रन कर रहा है एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो उसी को हम देख रहे हैं कि किस तरह से, तो ये मैं कोड बता रही हूँ, आपने सी प्रोग्रामिंग तो पढ़ी होगी ना फर्स्ट ईयर में। तो ये काउंट इक्वल टू 0, हमने इनिशियली काउंट की वैल्यू 0 कर दी क्योंकि अभी कोई एलिमेंट नहीं है। इनिशियली हम मान रहे हैं कि काउंट जो है मतलब यहाँ पर आप यहाँ पर पॉइंटर है। ठीक है, फिर ये क्या कर रहा है, ये प्रोड्यूसर अपना ये फंक्शन रन कर रहा है प्रोड्यूसर, और एक आइटम पी, एक वेरिएबल है, वेरिएबल लिया है हमने आइटम पी, है ना। फिर वाइल ट्रू मतलब ये कंडीशन आप हमेशा ट्रू है, आप ये अज्यूम करके चल रहे हो। तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस आइटम, इसने प्रोड्यूस किया आइटम, कौन सा आइटम प्रोड्यूस किया, आइटम पी जो आपने वेरिएबल लिया है ये प्रोड्यूस कर रहा है आइटम। नाउ व्हाइल काउंट इक्वल टू n, तो ये कंडीशन चेक कर रहा है कि काउंट की वैल्यू जब तक n है तब तक हमें ये लूप चलाना है ना। काउंट की वैल्यू n है मतलब कि n तक ही चलेगा ये, 0 से 7 तक, मतलब 8 एंट्रीज होंगी यहाँ पर। तो हम क्या कर रहे हैं, बफर इन मतलब मेमोरी में, बफर जो है मेमोरी है उसमें हम ये एरे है इन मतलब एरे, ये जो लिया हुआ है एरे है। ठीक है, तो एरे में आप इन कर रहे हो, इन भी आपने एक वेरिएबल लिया हुआ, इनकी वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है। तो फर्स्ट टाइम आइटम पी उसमें स्टोर कर दिया, फिर इस वैल्यू को आप बढ़ाओगे इनकी वैल्यू को, क्योंकि अभी ये 0 पे या 1 पर आएगा, 2 पर आएगा पॉइंटर। तो किस तरह से वैल्यू इसको इंक्रीमेंट करोगे, इन प्लस वन क्या है, इनिशियली इन 0 है, 0 प्लस 1, 1 मॉड n क्या होगा, 1 मॉड 8 क्या होगा, 1 आएगा, तो मतलब ये फिर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, इनकी वैल्यू नेक्स्ट पॉइंटर पे पहुंच जाएगी। सिमिलरली आपको काउंट को भी बढ़ाना पड़ेगा, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, है ना। काउंट को हमने इनिशियली 0 लिया, हमने मतलब फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, इस तरह से 8 एलिमेंट्स तक हमें ये काउंटर चलाना है। तो हम एक केस कंसिडर कर रहे हैं, हमने वी आर अज्यूमिंग अ केस इन विच ओनली वन आइटम इज प्रोड्यूस्ड। तो ये एक आइटम प्रोड्यूस हुआ x1 और ये स्टोर हो गया। ठीक है, अब हम इसके कोड पर जाते हैं, कंज्यूमर इसको किस तरह से कंज्यूम कर रहा है। अभी तक आपको डाउट है क्या कुछ, तो मैं रिपीट कर दूंगी बाद में, आप एक बार सुन लीजिए जितना समझ में आ रहा है, फिर हम फिर से रिपीट करेंगे। ठीक है, यस मैम। तो इनिशियली ये 0 पर था, है ना। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कंज्यूमर किस तरह से कंज्यूमर कर रहा है। तो कंज्यूमर कोड चल रहा है, वॉइड कंज्यूमर वॉइड, सी का कोड है ये। इसने एक वेरिएबल लिया हमने आइटम 0, आइटम आइटम सी लिया है, सॉरी आइटम सी। ठीक है, तो हम ये कंडीशन रखा है वाइल ट्रू, मतलब हमेशा कंडीशन ट्रू है। फिर उसी में हम अंदर लूप में जा रहे हैं, वाइल काउंट इक्वल टू 0, जब काउंट की वैल्यू 0 है मतलब यहाँ पर है,
देखो अभी तो सिर्फ एक आइटम लिया हुआ है, लेकिन अगर यहाँ 8 पूरे के पूरे आइटम्स फुल होते तो ये काउंट कहाँ से स्टार्ट होता, काउंट तो ये बढ़ चुका होता, 7 पे पहुंच गया होता, है ना, 8 पर, सॉरी। तो ये 8 से स्टार्ट कर, कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर जो लास्ट एंट्री है वहां से स्टार्ट करता है कंज्यूम करना, मतलब पहले वो इस आइटम को कंज्यूम करता है, ये जो लास्ट में है, फिर ये धीरे धीरे काउंटर कम होता जाता है और ये लास्ट में इस आइटम को कंज्यूम करता है। ठीक है, तो इसलिए हमने लिखा है काउंट इक्वल टू, वाइल काउंट इक्वल टू 0, जब तक काउंट 0 नहीं हो तब तक की ये पूरा का एक्सेस करता जाएगा आइटम्स को कंज्यूमर। बट इन दिस केस व्हाट वी हैव कंसिडर ओनली वन आइटम, तो काउंट अभी इनिशियली 0 पर ही है ना। तो सी, आइटम सी इक्वल टू बफर आउट, मतलब इसने बफर आउट मतलब इसने एक हमने यहाँ वेरिएबल दिया आउट, ठीक है, तो अभी इनिशियली आउट 0 ही है ना, क्योंकि आपने एक ही एलिमेंट डाला है इसके अंदर, तो काउंटर अभी दूसरा एलिमेंट इसमें एंट्री नहीं हुई थी, तो आउट इज 0। ठीक है, आइटम सी इक्वल टू बफर आउट, मतलब इस आइटम को एक्सेस करो। अब हमें इसको, अब इसको अपडेट करना पड़ेगा, सपोज ये यहाँ पर होता पॉइंट है तो इसको अपडेट करते, हम इसको ऊपर तक ले जाते काउंट को, तो ये जो आउट है 0+1 मॉड 8, ये आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, फिर काउंटर, जो काउंट है उसको भी हमें काउंटर की वैल्यू को, काउंट की वैल्यू को डिक्रीमेंट करना पड़ेगा 1 से, क्योंकि हमें इनिशियली जो भी जितने एलिमेंट्स उनको एक्सेस करना, बट इन दिस केस ओनली वन आइटम इज देयर, देन प्रोसेस आइटम आइटम सी। तो क्या कर रहे हैं हम, ये इसने प्रोड्यूस किया, सिंपल एग्जांपल है, उसने प्रोड्यूस किया और उसने उसको एक्सेस किया। अब एक मिनट आप थोड़ा सा इसको देखो, फिर मैं और एक्सप्लेन करती हूँ, कोई डाउट हो तो पूछिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक बार आप देखिए कोड को समझिए।
ठीक है। सो ये जो केस हमने कंसिडर किया, इन दिस देयर इज नो प्रॉब्लम, इसने एक आइटम प्रोड्यूस किया, इसने कंज्यूम किया। बट सपोज इफ वी आर अज्यूमिंग दैट इट दिस प्रोड्यूसर इज सपोज प्रोड्यूसिंग 5 आइटम्स, ठीक है, दोनों साइमल्टेनियसली दोनों प्रोसेस रन हो रही है, ये दोनों कॉन्करेंटली रन हो रही है, ये भी रन हो रही है, ये भी रन हो रही है। सपोज इट इज प्रोड्यूसिंग 5 आइटम्स सपोज, एंड इट इज एट द सेम टाइम इट इज कंज्यूमिंग द आइटम्स एट द सेम टाइम। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि देयर विल बी नो प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन एंड द रिजल्ट विल नॉट बी, जो आपकी आउटपुट ये काउंट की वैल्यू है वो आपकी एक्यूरेट नहीं आएगी। सपोज एग्जांपल लेते हैं, सपोज इट इज प्रोड्यूसिंग आइटम्स x1 x2 x3 x4 x5, इसने 5 आइटम्स ये प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, एट द सेम टाइम इट इज कंज्यूमिंग। तो काउंटर की वैल्यू जब ये पहला आइटम प्रोड्यूस कर रहा होगा तब काउंटर की वैल्यू इसको कितनी मिल रही है, 1, है ना। तो ये क्या करेगा, इस आइटम को कंज्यूम कर लेगा और फिर इस आइटम को ये कंज्यूम कर लेगा, फिर ये उसी आइटम पे अगर ये वर्कआउट करेगा तो इसको काउंटर की वैल्यू इसको क्या मिल जाएगी, यहाँ पर 1 मिल गई है। देखिए सपोज ये कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, ठीक है, ये प्रोड्यूसर है, ये कंज्यूमर है। इसने पहला आइटम क्रिएट किया और इसने काउंट की वैल्यू क्या सेट कर दी, काउंट इक्वल टू 1, और इसके पास काउंट की वैल्यू क्या आ गई है, 1, मतलब 1, ये जो है 1 है, ये 0 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ठीक है, इसने काउंट की वैल्यू 1 सेट की, ये इसको 1 मिल गया। एट द सेम टाइम इसने काउंट की वैल्यू 1 कंसिडर करते हुए आगे नेक्स्ट नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो प्रोड्यूस किया, ठीक है, सेकंड में एंट्री की, थर्ड सेकंड में एंट्री की, तो उसके पास काउंट की वैल्यू अभी इसने फिर क्या कर दिया, 2 कर दिया। इसके पास 1 थी, है ना, 1 पे इसने एक्सेस किया था, तो इसके पास ये 0 हो गई। तो ये क्या होगा, ये दोनों काउंट की वैल्यूज को अलग अलग टाइम, एक ही टाइम पे अलग अलग अपडेशन कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, देयर विल बी नो सिंक्रोनाइजेशन एंड एट द एंड काउंट की वैल्यू आप इसको देखेंगे, काउंट की वैल्यू हो सकता है इसके पास 5 हो, 5 आइटम्स के लिए इसके पास 6 हो, इसके पास 4 हो, मतलब इस तरह से दोनों का डिफरेंस होगा। हो सकता है इसकी 6 हो काउंट की वैल्यू, ये 4 पे ही वर्कआउट कर रहा, क्योंकि एट द सेम टाइम दे बोथ आर अपडेटिंग द वैल्यूज ऑफ द सेम वेरिएबल। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कॉमन एग्जाम्पल है, सपोज 2 प्रोसेस है, प्रोसेस एक कोई ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, दीज 2 प्रोसेस आर वर्किंग साइमल्टेनियसली, दोनों ट्रांजेक्शन्स एक साथ हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी इनिशियली ये अपने अकाउंट ये चेक कर रहा है, तो अमाउंट क्या 1000, इसने चेक किया 1000, इसी टाइम पे इसने क्या किया, ठीक है, ये इसने अमाउंट में ऐड कर दिया, लेकिन ये अभी सेव नहीं हुआ ट्रांजेक्शन, ये सेव नहीं हुआ, इसने ऐड किया हुआ है, ठीक है, अपडेट नहीं हुआ है ये। इसी टाइम पर इसने क्या किया है, साइमल्टेनियसली अमाउंट इक्वल टू, सॉरी, अमाउंट माइनस 200, ये भी अभी अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है, दोनों ट्रांजेक्शन हुए हैं लेकिन अभी अपडेट नहीं हुआ है, सेव नहीं हुए दोनों ट्रांजेक्शन। नाउ व्हाट विल हैपन, ये इसको सेव करेगा, तो इसको सेव कर लिया, तो अपडेट कर दिया हम, ये अपडेट हो गया। अपडेट होने के बाद यहाँ पर आप देखोगे तो क्या 800 रुपीज बचे हैं इसके पास, है ना, लेकिन इसी टाइम पे ये सेव नहीं हुआ था, तो इसने अमाउंट क्या किया, इसने बाद में अपडेट किया है, मतलब ये थोड़ा सा पहले अपडेट हो गया, देन इसने अपडेट किया, तो यहाँ पर अमाउंट आ रहा है 1500। तो ये दोनों गलत है, क्योंकि एक ही उस पर अगर आपने ये 200 डिडक्ट किए हैं तो यहाँ पर ये डिडक्ट दिखना चाहिए, ये लास्ट में अपडेट हुआ है, ये पहले अपडेट हो गया था।
ठीक है, तो ये एक सेकेंड, हाँ, ये साइमल्टेनियसली दोनों चल रहे हैं, कॉन्करेंटली दोनों प्रोसेस चल रही है। इसने ये अपडेट किया, यहाँ पर अपडेशन के बाद 800 होना चाहिए, और यहाँ पर अपडेट इसी अकाउंट में अगर आप कर रहे हो तो ये लेकिन 1500 आपको फाइनल आउटपुट दिखा रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे इनकंसिस्टेंसी होगी डेटा में, इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, तो इसी तरह से अगर 2-3 प्रोसेसेस या मल्टीपल प्रोसेसेस एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं अगर, तो उनके बीच में प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज द रिजल्ट्स विल बी इनकंसिस्टेंट, रिजल्ट्स आपके गलत आ सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक फाइल है x इक्वल टू, इसमें वैल्यू है 5। ठीक है, ये कोई कोड चल रहा है, इसने x इक्वल टू 5, इसके पास भी एक ही फाइल को शेयर कर रहे हैं दोनों, जैसे कि अब ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर में हमने देखा था, दोनों के पास x इक्वल टू 5 है। इसने x में कुछ x प्लस प्लस किया इसने। ठीक है, और जो भी अपडेट किया तो उसने प्रिंट एफ करके x की वैल्यू आपने प्रिंट की, तो आपके पास x आंसर आ रहा है 6 आंसर आ रहा है। ठीक है, बट ये उसी उसी पे ये भी वर्क कर रहा है, तो x इक्वल टू उसने किया माइनस माइनस, और इसने अपडेट कर दिया उसी वेरिएबल को एज 4। ठीक है, तो ये इनकंसिस्टेंट हो गया, क्योंकि x की वैल्यू या तो मतलब 4 हो सकती है और 6 हो सकती है, दोनों वैल्यू तो नहीं हो सकती ना। तो ये इस तरह की जो इनकंसिस्टेंसी आती है, जो प्रोसेसेस कॉमन वेरिएबल्स को शेयर करती है, इसलिए उनके बीच में एक प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन, या तो ये पहले अपडेट, ये वाली प्रोसेस को आप पहले रन करोगे, या फिर इसको सेकंड रन करोगे, या पहला इसका एक पार्ट रन करके फिर इसको करोगे। तो इस तरह से सिंक्रोनाइजेशन किया जाता है, प्रॉपर सिंक्रोनाइज की जाती है प्रोसेसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम्स जब वर्क करता है, जो देयर आर मल्टीपल प्रोसेसेस व्हिच आर रनिंग कॉन्करेंटली एंड दे आर शेयरिंग द सेम डेटा सेट्स, तो उस टाइम पे क्या होता है, एक प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन किया जाता है कि पहले ये प्रोसेस रन होगी, फिर ये प्रोसेस रन होगी, फिर इसका डेटा अपडेट होगा, देन इसका होगा। तो इस तरह से सिंक्रोनाइजेशन मीन्स टू प्रॉपरली सिंक्रोनाइज द प्रोसेस व्हिच आर रनिंग कॉन्करेंटली। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है कि एक ही डेटा की मल्टीपल वैल्यूज सेव हो रही है ड्यू टू cooperative processes. ठीक है, so this is the funda of synchronization. जो हमने प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम देखी, उसमें भी यही प्रॉब्लम आएगी कि वो एक ही काउंट वेरिएबल को यूज कर रहे हैं और एक सेम मेमोरी लोकेशन यूज कर रहे हैं, तो वो उस टाइम पे कुछ अपडेट कर रहा है, ये उस टाइम पे कुछ और एक्सेस कर रहा है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं। तो इसको एक कंडीशन होती है, फिर रेस कंडीशन, जो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो पूछ सकते हैं आपसे। व्हाट इज रेस कंडीशन? रेस कंडीशन क्या होती है? Race condition means uh, when the cooperative processes try to manipulate the same shared variable concurrently, and इससे क्या result होगा, and the outcome of the execution depends on the particular order in which the access takes place is called a race condition. A situation where both processes manipulate the shared variable concurrently.
Okay, so situation where both the process try to manipulate the same shared variable concurrently and arrives at incorrect state is known as race condition. ठीक है, तो रेस कंडीशन मतलब ये होता है कि एक अगर हमने सपोज इसके अकॉर्डिंगली अगर हमने इस वाली प्रोसेस को पहले अपडेट कर दिया तो रिजल्ट आता 6। अगर इसको अपडेट कर देते तो 4, मतलब इसको थोड़ा सा रन पहले कर देते तो 4 रिजल्ट आता। तो डिपेंड करता है कि अगर इसलिए कॉन्करेंटली मतलब किस प्रोसेस को आपने अगर ये पहले रन हो गई तो ये कुछ और रिजल्ट देगी, ये पहले रन होगी तो ये कुछ और रिजल्ट देगी। तो इस तरह से क्या होगा, इनकरेक्ट स्टेट्स आएंगे, इनकरेक्ट आउटपुट आएगा। तो इस तरह की सिचुएशन जो होती है उसको बोलते हैं रेस कंडीशन। ठीक है, तो रेस कंडीशन से बचने के लिए क्या किया जाता है, एक प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन किया जाता है so that the processes are properly synchronized so that they cannot result into incorrect output. Now for that there are many solutions, मतलब इस तरह की problems को deal करने के लिए there are many solutions. First one is critical section. Critical section use किया जाता है। critical section हम देखते हैं critical section क्या होता है। How to these are the critical section is used to deal with मतलब synchronization को maintain करने के लिए critical section का use किया जाता है। So methods for synchronizing processes. What is critical section problem? आपने मैंने भी देखा था, हो गया आपको शॉर्ट में। Now what is critical section? Critical section एक पोर्शन होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर पोर्शन या हमको बोल सकते हैं कोड है जिसमें सिर्फ एक एट अ टाइम एक ही प्रोसेस उसको एक्सेस कर सकती है। जैसे आप एटीएम मशीन में when you go to ATM machines at a time only one person can access that ATM machine. जैसे ही वो फिनिश करेगा दूसरे को परमिशन मिलेगी। सिमिलरली क्या करते हैं इस तरह की क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, क्रिटिकल सेक्शन में सिर्फ एक ही प्रोसेस एक्सेस करने के लिए जा सकती है। क्रिटिकल सेक्शन उन वो कोड होता है जो कॉमन वेरिएबल्स शेयर हो रहे हैं जहाँ पर। तो हम क्या करते हैं सिर्फ जो कॉमन वेरिएबल्स है, क्योंकि एट अ टाइम दोनों को हम एक्सेस करने देंगे तो कुछ भी रिजल्ट्स प्रोड्यूस होंगे इनकंसिस्टेंट, क्योंकि दोनों उस पर कुछ वैल्यूज लिख रहे हैं, कुछ अपडेट कर रहे हैं। तो हम क्रिटिकल सेक्शन में उस पर्टिकुलर कोड जो शेयर्ड हो रहा है उसको क्रिटिकल सेक्शन में एक प्रोसेस को अलाउ करते हैं, वो अपना काम करके बाहर निकलती है, देन अदर प्रोसेस विल गो टू द क्रिटिकल सेक्शन। So a critical section, the portion of program
where shared variables or shared resources are will be placed is known as critical section. For example, जो हमने previous example देखा था उसमें क्या था, काउंट की वैल्यू काउंट प्लस वन, दिस शुड बी इन क्रिटिकल सेक्शन। मतलब एक टाइम पे अगर कोई काउंट प्लस वन कर रहा है उसी टाइम पे वो काउंट को एक्सेस नहीं कर रहा हो दूसरा प्रोसेस, क्योंकि उसको ओरिजिनल वैल्यू नहीं मिलेगी, है ना। क्योंकि दोनों एक ही टाइम पे अगर एक्सेस करेंगे तो ये कुछ अपडेट करेगा, वो कुछ और अपडेट कर रहा होगा। तो जो इस तरह के वेरिएबल्स है कॉमनली शेयर्ड है उसको एक क्रिटिकल सेक्शन बोला जाता है। तो सिर्फ एक प्रोसेस उसको एक्सेस कर पाएगी। व्हाट इज नॉन, ये अभी आप एक मिनट को रिमूव भी कर लीजिए, मैं अभी आपको ये ठीक है। अभी हम कुछ डेफिनेशंस देखते हैं पहले। एक तो क्रिटिकल सेक्शन हो गया, क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, देन critical section is the portion where the common variables or shared resources are placed. Then second, we have non-critical sections. So the non-critical section is the portion of the program where the independent code of the process is placed. मतलब इंडिपेंडेंट कोड है जिससे कि आप उसको रन करोगे तो इट विल नॉट अफेक्ट द अदर प्रोसेस। वो जो कोड होता है उसको बोलते हैं नॉन क्रिटिकल सेक्शन इज प्लेस्ड। फॉर एग्जाम्पल जो हमने अभी ऊपर देखा था, इन इक्वल टू इन प्लस वन मॉड एन, ये जो स्टेटमेंट है इट इज नॉट अ कॉमन वेरिएबल और कॉमन, ठीक है। तो ये दोनों का अलग अलग है, इसका इन अलग था उसका आउट था, है ना, इन एंड आउट। दिस इज नॉन क्रिटिकल पोर्शन। रेस कंडीशन क्या होती है? अब रेस कंडीशन अभी हमने देखा, रेस कंडीशन मींस द फाइनल वैल्यू ऑफ द शेयर्ड वेरिएबल डिपेंड्स ऑन द एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेसेस। मतलब जो पहले प्रोसेस होगा वो उस तरह से उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट आएगा, ठीक है। तब एक साथ तो यही लिख लेते हैं, द फाइनल वैल्यू of the shared variable depends on एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेसेस। किस ऑर्डर में वो रन कर रही है प्रोसेस पर डिपेंड करता है फाइनल वैल्यू ऑफ शेयर्ड वेरिएबल। तो दिस इज नोन एज रेस कंडीशन। मतलब जो सबसे ज्यादा रेस में आगे होगा उसकी वैल्यू आएगी आउटपुट में। दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज नोन एज रेस कंडीशन।
Now to avoid the race condition को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? What is the solution? Only one process should be allowed to enter into critical section at any point of time. ठीक है, अगर एक उस वेरिएबल को अगर जैसे काउंट प्लस 1 को एक अगर अपडेट कर रहा है, प्रोसेस 1 अपडेट कर रही है, तो उस टाइम पे प्रोसेस 2 इसको यूज नहीं कर सकती है। ठीक है, only one process should be allowed to enter into critical section. Now, what are the conditions to achieve synchronization? Conditions to be followed to achieve synchronization. This topic I can discuss in next class also. I'll give you a brief discussion about this so that you can understand. If you have any doubt in this, you can discuss it in the next class. Okay? Now, what are the conditions to be followed to achieve synchronization? The first one is mutual exclusion. मैम Yes. अब लंच का ब्रेक चाहिए। ठीक है, हम मैम दोनों क्लास हो गया है। आज में तो और कंटिन्यू होगी। How many students are? One 22. लंच ब्रेक करना है या हम कंटिन्यू करना बताइए। ब्रेक मैम लंच ब्रेक, फिर 1:30 बजे दूसरा क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लंच ब्रेक करते। कल आप लोग फ्री हो एक क्लास में कर ले लीजिए। कल फ्री हो आप लोग, करते हो किसी कॉमन स्लॉट में।
बताइए कल फ्री हो तो कल एक एक्स्ट्रा, क्योंकि फ्राइडे इज हॉलीडे गणेश चतुर्थी। Otherwise, my class will be on Tuesday. So if you are having time today or tomorrow, then you can inform me. ठीक है? ठीक है स्टूडेंट्स, आप सीआर जो आपकी क्लास के सीआर है वो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दें। कल में है ना, कल में छोड़ दें। If you are having free slot tomorrow, then I can take the class free tomorrow.